L.K. Advani helped her tremendously. And also she was very dear to Atal Bihari Vajpayee. As I said earlier, Vajpayee ji was really impressed with her eloquence, the way she used to speak, and in that context, these two tallest leaders of the party, Atal Bihari Vajpayee and L.K. Advani, both helped her groom into the Indian politics in various roles. And that is why when she was made the first woman spokesperson of the party, she got an opportunity to prove herself, which she did. And therefore, I think then there is, you talked about and asked about Prime Minister Narendra Modi. When Mr. Modi was the organizing secretary of the party based in Delhi, in charge of Haryana, Himachal, Chandigarh, she was originally from Haryana. So therefore, there was a bonding between her and Mr. Narendra Modi, and he used to frequently consult her in respect of the politics in Haryana. And from there, their equation was working perfectly well. And when Mr. Modi went to Gujarat as Chief Minister, and she was the leader of the opposition, during that period also, both had wonderful equation, very good relation. But if we have to decide and say who was her political mentor, I would say it was Atal Bihari Vajpayee and L.K. Advani. Both literally groomed her as their daughter in politics, and literally, gave her space to prove herself, which she did. In fact, she was given very difficult assignment. Sending her to Delhi as Chief Minister on the eve of the election was perhaps a litmus test, which she didn't decline. And she fought, although she herself won the seat, but the party lost. And similarly, she was asked to go to Bellary. Everybody knew that Sushma Swaraj has got nothing to do with Karnataka. But to challenge that time the Congress President Sonia Gandhi was an Herculean task. She never refused. She went there, fought well, and in fact, as we discussed earlier, learned Kannada also. And so she made a mark, whatever assignment was given to her by the party as a disciplined soldier of the party, she accomplished it and went on to perform. In fact, when she was given External Affairs Ministry by Prime Minister Narendra Modi, many people wonder, well, how can a woman politician who has no experience of diplomacy can become a successful External Affairs Minister? But she proved herself. In fact, in many ways, she brought the External Affairs Ministry to the doorstep of the Indians as well as the NRIs and PIOs, because in India, she believed that every Indian citizen has a right to get passport, and in that direction she made efforts. And I think now the number of passport offices we see in India in the Modi era is all contribution of Sushma Swaraj. Right, and that connection with the diaspora is extremely important because there was earlier there was a Ministry of Overseas Indian Affairs which was merged into the Foreign Affairs, External Affairs Ministry, and of course the way she dealt with the diaspora is extremely important, and the manner in which also she let's say this Look East policy was called, and she used the word Act East. She made it the Act East policy, bringing dynamism into the policies, which seemed in diplomacy, which seemed to be static in a sense. There was now some sort of movement. We could see India gaining stature in the world. Certainly, because she gave a new definition to diplomacy. Because in the normal parlance, in world over, diplomacy means dealing in relations with the foreign countries through your mission. But she gave a new definition by reaching out to the people of Indian origin and in the entire world, and people of Indian origin, whether NRIs or Indians traveling abroad, they were never given such an assistance whenever they were in need. But she opened a new chapter. She was on Twitter, perhaps I think she had maximum follower on the Twitter world over, and one tweet, as people used to call her, she was I think you also mentioned, she was a tweet away. And whenever she received a tweet from Indians traveling abroad or people of Indian origin, यहाँ पे दर्शकों को बता दें कि लोधी रोड में
पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुषमा स्वराज, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में अलग अलग दायित्वों का निर्वाह करते हुए पूरे जीवन में सभी के भलाई के लिए काम किया और सभी के जीवन को छुआ, जिस के साथ वो संपर्क में आए उन पर उन्होंने अपने व्यक्तित्व की एक छाप ज़रूर छोड़ी। यही कारण है कि आज उनकी इस अंतिम यात्रा में हर कोई शामिल हो रहा है। उनके जाने की क्षति अपूर्णीय क्षति है, न केवल राजनीतिक जीवन के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि जिस समर्पण के साथ उन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया वो वाकई अतुलनीय है। इस वक्त उनका पार्थिव शरीर लोधी रोड स्थित श्रद्धागृह में पहुंच चुका है और उनके अंतिम संस्कार की विधि शुरू हो रही है। अशोक जी, जैसे हम जानते हैं कि इस वक्त राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तिरंगे में लिपटा हुआ है उनका ये पार्थिव शरीर। एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है ये, एक कार्यकर्ता के लिए भी, एक देशभक्त के लिए भी, कि इस तरह का अंतिम संस्कार भी मिले। देखिए, आपने अभी देखा कि जब उनका पार्थिव शरीर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में रखा गया था और उस समय पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने उन पर पार्टी का झंडा उन पर रखा था, उनको पार्टी के झंडे में लपेटा गया था। लेकिन अब जब शव यहाँ पर पहुँचा है शवगृह पर, तो उनको क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होने जा रही है, तो उनको तिरंगे में लपेटा गया है। तो ये जो एक राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, ये इसलिए कि उनका सारा राजनीतिक जीवन जो है वो समाज के प्रति तो था ही, और इसलिए पार्टी ने अपना जो एक फर्ज निभाया। लेकिन यहाँ आने के बाद जो उनका एक मंत्री के नाते एक उनका व्यक्तित्व था, जो उनको एक दायित्व था देश की ओर से, देश के लोगों की ओर से, उस सम्मान में उनको राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जा रही है, इसीलिए उनको तिरंगे में लपेटा गया है। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और ये उनके प्रति पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि है। पहली श्रद्धांजलि हमने देखी तो पार्टी ने दी, पार्टी कार्यालय में उनको तिरंगा, उनके ऊपर पार्टी का झंडा उनके प्रति समर्पित करके यहाँ आज तिरंगे में उनको, उनके शव को जब लपेटा देख रहे हैं, तो पूरे देश की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं और दलों के नेता भी इस अंतिम संस्कार के समय, अंतिम जो उनकी यात्रा है उसमें भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सम्मान है राजकीय, ये पूरे देश की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, और जिस तरीके से विभिन्न दलों के बीच उनकी स्वीकार्यता रही है, ये उनके व्यक्तित्व का भी एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। अशोक जी, हम लगातार ये भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से विदेश मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल रहा, लेकिन आज रानिल विक्रमसिंघे ने जो अपना शोक संदेश भेजा, उससे भी एक संकेत मिलता है उनके विदेश मंत्री के तौर पर वो किस तरह से उन्होंने काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि न केवल द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने में सुषमा स्वराज ने योगदान दिया, बल्कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उन्हें बहुपक्षीय मंचों पर भी आगे बढ़ाने में उन्होंने काफी योगदान दिया। ये भी दिखाता है कि भारत के विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने न केवल देश की साख आगे बढ़ाई बल्कि पूरे क्षेत्र में भी बहुपक्षीय मंचों पर साख आगे बढ़ाई। बिल्कुल, और ये उनके प्रति जो शोक संदेश हैं पूरे हम देख रहे हैं कि हमारे सभी पड़ोसी देशों से आए हैं। अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ाई की ओर से है, नेपाल के नेताओं ने, बांग्लादेश के नेताओं ने, और अभी जैसे आपने कहा श्रीलंका। तो उनका जो एक भारतीय जो विदेश नीति के तहत हम अभी अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधार रहे हैं, इस नीति पर उनकी विदेश नीति चली और इसलिए वो हमारे इस उपमहाद्वीप में सभी पड़ोसी देशों में उसमें वो बहुत लोकप्रिय थी और इसलिए उनके व्यक्तिगत संबंध थे। हम देख रहे हैं कि कितने ही ट्वीट पर पाकिस्तान से जिस तरह के संदेश आ रहे हैं, पाकिस्तान के वो लोग जिनकी उन्होंने मदद की,
उनके इलाज के लिए अशोक भारत जी, में। यहाँ पे अपने दर्शकों को एक बार हम बता दें कि लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार की विधि शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम देख सकते हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ यहाँ इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। Also representatives from Bhutan visible in the front row. Home Minister Amit Shah, also the BJP president, and the working president is also there, Mr. J.P. Nadda, and Rajnath Singh, who was the president twice, in fact, of the party, and currently the defense minister, also sitting and waiting for the last rites to be performed. A solemn occasion because they are bidding farewell to a friend and a colleague, and one they held in high regard. And also the party will miss her, the nation will miss her, but as is the belief, the Atma will always be there and will guide in the future endeavors. So that is the hope that one looks at when an occasion like this. और सुषमा स्वराज तो अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ कर गए हैं। एक अपने व्यक्तित्व, अपनी कार्यशैली के जरिए ऐसे तमाम उदाहरण छोड़ के जा रही हैं जिनका पालन या जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अशोक जी, जब हम इस तरीके का एक मौका देखते हैं, जब सुषमा स्वराज जैसी एक कलीग जिनके साथ उनके राजनीतिक जीवन में जब उन्होंने पदार्पण किया, यहाँ बहुत से नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने उनके राजनीतिक जीवन में बहुत करीब से उन्हें देखा होगा। आज उनके लिए भी एक बहुत संवेदनात्मक मौका है ये, जब उनके अंतिम क्रिया में वो सम्मिलित हो रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ जितने भी आप नेताओं को देख रहे हैं हम लोग, चाहे वो सरकारी पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन्होंने सुषमा जी के साथ बहुत नज़दीकी के साथ काम किया है, कई वर्षों तक काम किया है। और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी हमने देखा था कि जब ये कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा को मनोनीत किया गया और उनके जो उनको जिस प्रकार से पार्टी में परिचय कराया गया, वो जो अवसर अभी कुछ सप्ताह पहले हमने देखा, उसमें सुषमा स्वराज शामिल हुई थी। और शायद वो उनकी अपनी पार्टी के मुख्यालय में जो आखिरी बार वो गई थी, वो अभी कुछ सप्ताह पहले की बात है। और उस समय ये सभी नेता जिनको हम आज देख रहे हैं, और ये सुषमा जी के साथ बैठकर वहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारी बातें की और बहुत सारा विचार विमर्श किया। तो अंतिम समय तक भी वो सक्रिय थी और उसके साथ साथ वो पार्टी के हर कार्यक्रम में भी उपस्थित रहती थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हुआ दूसरी पारी का, तो उसमें वो शामिल हुई थी, जबकि उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि स्वास्थ्य कारणों से वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन और वो जो चुनावी राजनीति से भी नहीं होंगी, लेकिन उस समारोह में वो उपस्थित थी। उसके बाद जितने भी कार्यक्रम हुए उन सब में वो शामिल होती रही थी। तो इन लोगों के लिए तो विश्वास करना भी मुश्किल है कि सुषमा जी आज उनके बीच में नहीं। अशोक जी, इस वक्त हम ये दृश्य लोधी रोड से सीधा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। सुषमा स्वराज के अंतिम क्रिया की विधि शुरू हो चुकी है और उनकी पुत्री इस वक्त हम देख सकते हैं यहाँ अंतिम संस्कार की इस विधि में शिरकत कर रही है। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ सीधे लोधी रोड से जुड़ गए हैं। नीरज, एक बहुत भावनाओं से परिपूर्ण अश्रुपूर्ण मौका है ये सबके लिए। बिल्कुल अश्रुपूर्ण मौका है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत की मालिक थी जिनकी तारीफ न केवल देश के तमाम नागरिक करते थे, बल्कि विपक्ष के लोग भी उनकी काबिलियत के कायल थे। उनकी आवाज़ में एक बोझ था, विचारों में ताजगी थी, हौसले उनके बुलंद थे और उनके निर्णय क्षमता, खासतौर से अगर राजनीति की बात करें तो एक ऐसा आकर्षक चेहरा था जिसकी प्रशंसा हर कोई शख्स करता था। और इस समय लोधी शमशान घाट पर पहुंची हैं। उनका जो पार्थिव शरीर है, तमाम देश भर के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी और
अगर आप देखें तो विपक्ष के भी जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और सभी इस समय गमगीन हैं जिस तरह की शख्सियत की मालिक थी सुषमा स्वराज जी, और लगातार बीमारी के बावजूद भी लगातार ये रही। जब अनुच्छेद 370 को लोकसभा से पास किया गया था तो उस समय भी उन्होंने ट्वीट किया था और ये कहा था कि वो इंतजार कर रही थी इस दिन का। तो आप कह सकते हैं कि एक शख्सियत हमारे बीच में नहीं रही जिसकी याद दुनिया का हर शख्स करेगा, क्योंकि वो न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि देश दुनिया के तमाम ऐसे लोगों के लिए जो मुसीबतों में रहते थे उनके साथ उनका हमेशा से खड़ी रहती थी। कई सारे उनके ऐसे किस्से हैं जब उन्होंने आगे बढ़कर काम किया और ये नहीं देखा कि वो विदेश मंत्री हैं, एक महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते उन्होंने कई सारे जो काम हैं वो ये संकट में रहे हुए व्यक्तियों को न केवल विदेशों में ही पासपोर्ट उपलब्ध कराया बल्कि गीता का किस्सा हम सबको याद है कि किस तरह से वो पाकिस्तान से गीता को लेकर आई। तमाम जो लोग विदेशों में संकट में रहते थे, चाहे खाड़ी देशों की बात करें, हामिद अंसारी जो 6 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहा था और उसके बाद सुषमा स्वराज जी के अथक प्रयासों के बाद उसको वापस भारत लाया गया था। कई सारे ऐसे किस्से हैं, कई सारी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर आज एक महान शख्सियत ममता हमारे बीच में है। जी बिल्कुल, तो एक लंबी यादें वो हमारे अपने पीछे से सबके लिए छोड़े जा रही हैं। इस वक्त उनका अंत्येष्टि का कार्यक्रम लोधी रोड स्थित इस शपथागृह में चल रहा है और ये सीधे दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज अपने अंतिम सफ़र पर जा रही हैं। अशोक जी, सुषमा स्वराज की जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारी तस्वीरें वो हैं जो वो बहुत युवा कार्यकर्ता थी तब की हैं, जिनमें से एक बहुत युवा तस्वीर नज़र आती है जो वो एनसीसी कैडेट थी। उन्होंने एनसीसी की टोपी भी पहनी हुई है। जब एनसीसी कैडेट थी तब की भी एक तस्वीर नज़र आती है। ये जो जब हम देखते हैं जो बड़े नेता हैं वो अपने छात्र जीवन से ही जब राजनीति से जुड़े हैं तब से ही उनको शेप करना शुरू कर दिया जाता है। आप मानते हैं कि सुषमा स्वराज जिस वक्त छात्र जीवन में थी, एबीवीपी में भी थी, वो उस वक्त जिन नेताओं के साथ उन्होंने राजनीति का गहरा पढ़ा उससे भी उनको राजनीति को समझने में और आज वो जिस तरह राजनीति एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर उन्होंने कार्य किया, कहीं ना कहीं उसका आधार भी बहुत मजबूत था। बिल्कुल, वो छात्र जीवन से ही एक ओजस्वी छात्र नेता बनी अपने ओजस्वी भाषण शैली के कारण। और जैसा कि अभी आप भी कह रहे थे और हमने तस्वीरों में देखा कि वो एनसीसी की एक कैडेट थी, तो इसका अर्थ ये है कि वो शुरू से ही अपने छात्र जीवन से ही एक बड़ी सक्रिय छात्रा के तौर पर उभर कर आई। और जब ये इमरजेंसी का आंदोलन हुआ तो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के साथ भी वो जुड़ी। इसमें एक बड़ी रोचक प्रसंग ये है कि सुषमा स्वराज शादी से पहले सुषमा शर्मा थी और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी, लेकिन उनकी शादी जब स्वराज कौशल से हुई और स्वराज कौशल समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे और इस कारण जब दोनों मिले तो वो दोनों ही जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में इकट्ठे ही शामिल हुए और इसके चलते दोनों ही जनता पार्टी में आए। लेकिन जब जनता पार्टी टूट गई 1980 में तो सुषमा स्वराज ने जितने भी समाजवादी घटक के दल बने, चाहे वो लोक दल हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे जितने भी हम आज जनता दल देखते हैं, उनके साथ ना जाकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और अपने पति की विचारधारा वाले दलों में नहीं गई। ये भी एक स्वतंत्र विचारधारा रखने वाली जो एक शख्सियत थी, वो भी एक उदाहरण सुषमा जी ने प्रस्तुत किया। और जैसे मैंने पहले कहा कि राजनीतिक जीवन में अनुशासन का लगातार पालन किया। कभी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर किसी और दल में जाने की भी बात नहीं सोची, जबकि उनको मालूम था कि परिवार में एक पति और पत्नी की विचारधारा में कहीं ना कहीं अंतर है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए। एक बात आपने जो कही कि उस दौरान 1977 से 80 के समय में जब जनता पार्टी सत्ता में थी और मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर जी पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय
सुषमा स्वराज का संपर्क चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस और उस समय के जितने भी समाजवादी नेता थे या और कांग्रेस से आए हुए नेता थे जनता पार्टी में, उनके साथ उनके बहुत निकट संबंध बने। अभी हम देख रहे थे श्रद्धांजलि देने में हमने शरद यादव जी को देखा, हमने रामविलास पासवान जी को भी देखा, और इस तरह से हमने अन्य दलों के जितने भी नेता हैं उससे लगातार उनके संबंध बने रहे। फिर बाद में जब एनडीए में ये सब लोग फिर से शामिल हुए तो हमने देखा शरद यादव भी एनडीए में आए, नीतीश कुमार भी एनडीए में आए, जॉर्ज फर्नांडिस भी एनडीए में आए। तो उनके साथ वो पुराने संबंध सुषमा जी के लगातार बने रहने के कारण उनको एनडीए में भी इन लोगों का बहुत सहयोग मिला। और ये एनडीए जब दोबारा अटल जी के नेतृत्व में बनी तो वही समाजवादी नेता, और उसमें स्वराज कौशल भी शामिल हुए, और स्वराज कौशल फिर मिजोरम में जो अलगाववादियों से बातचीत का भी उनको जिम्मा दिया गया, मिजोरम के गवर्नर भी बने। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अगर आप अपनी विचारधारा पर अडिग रहते हैं और कोई समझौता नहीं करते और दल के अनुशासन में रहते हैं तो आगे चलकर ये चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगती हैं। और यही एक मैं समझता हूँ उनके व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जहाँ जिस विचारधारा से वो जुड़ी उसके साथ अंतिम तक जुड़ी रही। और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि उनका अंतिम ट्वीट जो था वो जो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया उन्होंने धारा 370 का, और उसके बाद हमने कई जगह देखा धारा 370 के विषय पर जो उनका संसद में भाषण जो है वो भी इतना प्रभावशाली और एक छाप छोड़ने वाला था। तो कुल मिलाकर अपने राजनीतिक विचारधारा से विचलित नहीं हुए, पार्टी के अनुशासन को कभी नहीं तोड़ा और संसदीय मर्यादा को भी कभी नहीं तोड़ा। और जैसे आपने पहले भी कहा कि मंत्री के नाते भी प्रोविटी इन पब्लिक लाइफ का भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया और महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए आज वो हम में से the mortal remains of Sushma Swaraj, the veteran leader L.K. Advani, patriarch in a sense of the party. And a host of leaders we had seen from the opposition side had come forward with their tributes, placing wreaths on the body of late Sushma Swaraj. And this continues as people pay their last final farewell to the mortal remains of Sushma Swaraj ji. Her contribution, as we have been discussing, has been immense. It has crossed party lines, it has crossed the borders of our country, it has spread far and wide, and people across the world are expressing their sorrow at the loss of a great leader of our nation, who in her last 5 years as the External Affairs Minister left a huge impression on the global stage. But as we have been discussing, her entire political career has been one of great service to the people of our country. इस वक्त सुषमा स्वराज को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसके बाद अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू होगा। सुषमा स्वराज जिन्होंने अपने जीवन के जरिए Governor of Delhi. जी, And before that was the Chief Minister of Tripura, Biplab Dev. इस वक्त लोधी रोड पर सुषमा स्वराज को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तमाम राजनेता और इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुषमा स्वराज को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सुषमा स्वराज जिन्होंने युवा जीवन से ही राष्ट्र सेवा का पाठ सीख लिया था। अशोक जी, ये भी कहा जाता है कि हालांकि वो छात्र वर्षों से ही राजनीति में आ गई, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं रक्षा सेवाएं ही ज्वाइन करना चाहती थी, वो डिफेंस सर्विसेज भी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन चूंकि उस वक्त महिलाओं के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं थे सेना में, इस वजह से वो सेना में नहीं गई। देखिए, छात्र जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, वो एक बड़ी उमंग रहती है, कुछ करने की जज्बा रहता है, और उसी के चलते हमने देखा कि वो एनसीसी में भी जिस तरह से बहुत सक्रिय रही, तो कहीं ना कहीं मन में कुछ करने की जो चाह होती है और वो छात्र जीवन में सबसे प्रबल होती है।
और ऐसे में अगर कहीं मोड़ इस तरह से आ जाए कि वो उनको एक छात्र आंदोलन की तरफ प्रेरित करे, जिसको मैं समझता हूँ कि जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन ने सुषमा स्वराज को उस ओर प्रेरित किया और इसीलिए वो छात्र जीवन से ही उस ओर प्रेरित होकर एक तरह से उस आंदोलन में शामिल हुई। जी अशोक जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत भावनात्मक रूप से अपने ट्वीट संदेश के जरिए सुषमा स्वराज को अंतिम श्रद्धांजलि दी थी और इस वक्त पुष्पांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि मैं भूल नहीं सकता कि किस तरह से पूर्व विदेश मंत्री ने 5 साल बिना थके काम किया, यहाँ तक कि जबकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तब भी वो अपने काम के साथ न्याय करने के लिए जो कर सकती थी उन्होंने किया। और इस वक्त हम देख सकते हैं उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू सुषमा स्वराज को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने ट्वीट संदेश में ये कहा कि आज एक ओजस्वी नेता और मैंने एक निकट सहयोगी खो दिया है। निशब्द हूँ, ईश्वर पुण्य आत्मा को आशीर्वाद दें। उनके शोकाकुल परिजनों सहयोगियों के प्रति संवेदनाएं। इस वक्त विभिन्न राजनेता विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस वक्त हम देख सकते हैं कि भावनाओं से ओतप्रोत विभिन्न नेता, क्योंकि ये क्षति सुषमा स्वराज का जाना बहुत सारे नेताओं के लिए एक व्यक्तिगत क्षति से कम नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि सुषमा स्वराज का जाना उनके लिए भी व्यक्तिगत क्षति के ही समान है। उनके जाने के दुख को जहां हर देशवासी महसूस कर रहा है, तो वहां विभिन्न नेता भी, जिनके साथ उन्होंने कई दशकों तक काम किया, उनके जाने की कमी वो आज महसूस कर रहे हैं। And we are also joined by Mr. Shakti Sinha, Director of the Nehru Memorial Library and intellectual and commentator. Thank you very much, sir, for being with us. How do you remember Sushma Swaraj ji? I remember Sushma Swaraj ji as somebody she was very committed to her work. She was a very, very strong team player. And as a team player in her interactions, she was very informal. People spoke frankly with her. She spoke very frankly. She expressed herself very clearly. She never minced words. But once a decision was taken, then whether it was to her liking or not, she never let that bother her. So in that sense, for a parliamentary democracy, to have such ministers or people at the top is a matter of great strength to our nation. But of course, at this moment, just imagining how suddenly the end has come, it was, I think, great shock to anybody who not only knew her personally, interacted with her, but even to the world outside who had just seen her through TV, through Twitter. I think people at this moment are feeling very somber and a little out of the world. And you did mention Twitter, and a lot has been spoken about her last tweet, in which she mentioned that she had been waiting for this moment for a lifetime, about Article 370. And people are commenting about the words used. And you, as a person who understands literature, how do you understand that? No, it almost seems like a prophetic kind of a thing. It is the, thank God I see this, It's a very, very strong statement to come. Obviously, I mean, in that sense, hopefully that she did not know, but I think that just conveyed how strongly she felt about 370, that even at that moment she felt that, thank God I'm seeing it happening in my life, I think it's almost a last wish coming through. जी शक्ति सिन्हा जी, हम लगातार बात कर रहे हैं उनके व्यक्तित्व की, उनके योगदान की, एक सांसद के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर किस तरह की थी सुषमा जी? एक व्यक्ति के तौर पर आप उन्हें कैसे देखते हैं? व्यक्ति के तौर पर वो बहुत इनफॉर्मल, बहुत रिलैक्स्ड, कभी किसी को फील नहीं करने देते थे कि मैं कोई बड़ी नेता है, आप क्या है। हर दम सबके साथ जिस तरह से मिलती थी, जुलती थी, बात करती थी, तो बड़े मैंने कहा पारदर्शिता के साथ सबके साथ, तो इसीलिए लोग आराम से बहुत खुल के उनके सामने बात कर सकते थे। वो अच्छी तरह सबको सुनती थी।
एंड इसलिए जो साथ रहते बड़ा कॉन्फिडेंस उसमें मिलता था कि जो मैं कह रहा हूँ, मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ, वो बात जो सुन रहा है वो दिल खोल के सुन रहा है। सो आई थिंक वो कैरेक्टरिस्टिक उनका, सबके साथ, सबको अपने साथ लेकर कभी फील नहीं कराना कि मैं कौन हूँ, मैं मंत्री हूँ या बड़ी नेता हूँ, कभी ऐसे फील नहीं कराने, कभी नहीं किसी को देती थी। और जबकि बहुत मंत्री थी भारत सरकार में, उन्हें भेजा गया दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन जाइए, तो बड़ा शौक था, फिर भी बड़े आराम से, तो वेरी डिफिकल्ट जॉब, तो इसलिए कभी लगता नहीं था कि वो कोई एयर्स के साथ है या कुछ अपने आप को बहुत बड़े व्यक्ति की तरह, हरदम बड़ा हम ह्यूमिलिटी के साथ आराम से, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मेमोरी है। यही कारण है कि उनके आकस्मिक निधन से हर कोई हैरान हो गया है, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि अब सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं हैं, और इस वक्त राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में किया जा रहा है। अशोक जी, हम जो भी तस्वीरें देख रहे हैं वो लगातार वही तस्वीरें हैं जहां पर एक हंसती मुस्कुराती सुषमा स्वराज नजर आ रही हैं, जबकि हम जानते हैं कि राजनीतिक जीवन में तरह तरह के लोगों से आपको मिलना होता है, तरह तरह के मुद्दों से आपको निपटना होता है, कई चुनौतियां सामने आती हैं। आप जब जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं एक मंत्री के पद पर, एक सांसद के पद पर, तो हर तरीके के चुनौतियां आपके सामने होती हैं। इन सब के बावजूद किस तरह सुषमा स्वराज, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा उनका सबके जहन में जिंदा रहेगा, किस तरह हर मौके पर वो इस तरीके से मुस्कुराती नजर आती थी, ये एक बहुत बड़ी ताकत है किसी के व्यक्तित्व की। देखिए, जब कोई सार्वजनिक जीवन में आता है तो सार्वजनिक जीवन में चुनौतियां भी रहती हैं और अवसर भी रहते हैं, और लोगों का दिल जीतना ये सार्वजनिक जीवन का एक लक्ष्य रहता है। मुझे लगता है कि सुषमा जी ने अपने पूरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जिस तरह से लोगों के दिलों को जीता और उसमें अपने लिए एक मित्रता का स्थान बनाया। जैसे आमतौर पर हम ये जानते थे कि सुषमा जी के संपर्क में जो आया वो उनका बन के रह जाता था, एक आत्मीयता बनती थी, एक मित्रता बनती थी उनकी, और वो उस मित्रता को इस तरह से संजो के रखती थी कि जब भी उस व्यक्ति को मिलेंगी, चाहे कितने साल बाद क्यों ना मिले, उसको उसके नाम से पुकार कर वो पूछती थी कि आपका हाल क्या है। तो ये दिखाना कि वो उस जो संबंध है उसको भूली नहीं है। और ये बात चाहे उनको कोई व्यक्ति 25 साल पहले भी मिला होगा सार्वजनिक जीवन में, तो उसके साथ भी उनका आत्मीयता का वैसा ही संबंध था। तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो चुनौतियों को तो उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि पार्टी हर बार सत्ता में नहीं रही, और बहुत लंबे समय तक तो 1980 के बाद हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1996 तक तो विपक्ष में ही रही। तो ये जो लंबा 16 वर्ष का एक संघर्ष का काल था, उसमें वो समय भी आया जब पार्टी के केवल 2 सांसद रह गए थे। उस दौरान में भी उन्होंने कोई विचलित होकर और कोई एक किसी तरह का समझौता नहीं किया, और उस लंबे 16 साल के जीवन को हम ये कह सकते हैं कि वो राजनीतिक जीवन का संघर्ष काल था, उन्होंने कहा। और उसके बाद जब पार्टी सत्ता में आती है तो फिर वो मंत्री के नाते भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रही हैं। वो किसी तरह से, जैसे अभी शक्ति जी ने कहा कि ये कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि वो मंत्री हैं, अब वो साधारण कार्यकर्ता नहीं। फिर पार्टी जब विपक्ष में चली जाती है 2004 में, तो 2004 से 2014 के लंबे काल में भी फिर उन्होंने संघर्ष किया, और नेता विपक्ष की भूमिका को जिस बखूबी से उन्होंने निभाया, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी में नेता विपक्ष दूसरी पीढ़ी का कोई नेता बना था। और पहली देख सकते हैं इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सुषमा स्वराज के जाने का गम स्पष्ट झलक रहा है। कल भी हमने देखा किस तरीके से जब वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस वक्त भी उनकी आंखें नम हो गई थी, और इस वक्त भी अत्यंत गम की मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज की इस अंतिम क्रिया में शिरकत कर रहे हैं। शक्ति सिन्हा जी, आप किस तरीके से सुषमा स्वराज के राजनीतिक जीवन के उभार को देखते हैं? अगर आप उनका राजनीतिक जीवन देखेंगे, वो बहुत कम उम्र में हरियाणा में मंत्री बन गई थी, 25 साल की उम्र में है, सोशलिस्ट बैकग्राउंड था उनका, और प्रिंसिपल्स को लेके उनकी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवीलाल जी से डिफरेंसेस हुई और वो इस्तीफा दे दी। आप समझेंगे कि जो 25 साल को पावर मिला है, वो लोभित होगा, लगेगा कि अब पावर एंजॉय किया जाए। वो कभी अपने प्रिंसिपल्स को इस मामले में सैक्रिफाइस नहीं की,
और जैसे बात हो रही थी, एक तो सबसे अच्छा डील करती थी, मगर साथ साथ उनके विचारधारा बड़े स्पष्ट थे, अपने प्रिंसिपल पर बड़ी डटी रहती थी और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करती थी। तो इसलिए कितने साल विपक्ष में रहना पड़ा। तो जनता पार्टी ब्रेकअप कर गई 1980 में और वो बीजेपी में आ जाती हैं, जबकि उनका बैकग्राउंड बीजेपी का नहीं था। तो नई पार्टी में धीरे धीरे अपनी छवि बनाते रहे। इसलिए ज़्यादा अधिकतर पीरियड तो आप देखिएगा कि सुषमा स्वराज जी का विपक्ष में ही रहा है। सत्ता में तो कंपैरेटिवली बहुत कम दिन रहा है, बट कभी आपके चेहरे से उनको लगता नहीं था वो टेंशन कि कब तक हम लोग विपक्ष में रहेंगे। तो हर तरीके से, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स की बहुत स्ट्रांग थी उस पर, तो इसलिए कभी वो जल्दीबाजी में नहीं कि पावर जल्दी मिल जाए, ऑपर्चुनिज्म, वो कभी अवसरवाद कभी देखने को मिला नहीं। और इसलिए जब पार्टी पावर में आती है, 98 में जैसे मंत्री बनती हैं, 2014 में दोबारा मंत्री बनती हैं, तो बड़े आराम से वो ट्रांजिशन ऑपोजिशन से विपक्ष से लेके सत्ता में ट्रांजिशन बड़े आराम से उन्होंने उसको कर किया। And in 2014, when she became the External Affairs Minister, when people comment about diplomacy, they say that we are understaffed in our diplomatic missions, we don't have enough diplomats. But here was a minister who used Twitter to engage with the diaspora, and in a sense she made them our ambassadors. And Prime Minister has said that all the time when he speaks to the diaspora. But they may have felt like being our ambassadors because of the connection that they had with Sushma Swaraj. And she really used the Twitter very effectively. You are very right in saying the diaspora, but even going beyond the diaspora. Absolutely. The ability to connect. अशोक जी, अभी शक्ति सिन्हा जी ने बात की कि अपने सिद्धांतों से कभी सुषमा स्वराज जी ने समझौता नहीं किया। इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिला था जब इसी साल जून में सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके बोला कि मैंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश भी देता है। बिल्कुल, जब उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की कि वो स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, और उसके बाद से उन्होंने धीरे धीरे ये सब परिस्थितियों को झेलते हुए, और जब लोकसभा का चुनाव हो गया, सरकार बन गई, तो उन्होंने तुरंत अपना जो बंगला था उसको खाली किया और एक निजी निवास में स्थान में वो आ गई। तो ये भी एक उदाहरण है, क्योंकि हम आमतौर पर राजनेताओं के बारे में ये धारणा रहती है कि वो चिपके रहते हैं सत्ता से, अगर सांसद नहीं भी रहें, मंत्री नहीं भी रहें, तो बंगला नहीं छोड़ते हैं। तो वो भी एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया और तुरंत अपना बंगला छोड़ दिया। तो ये तो है ही। लेकिन एक बात अभी जो हम बात कर रहे थे कि उन्होंने जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय हैं, उनकी सहायता के लिए उन्होंने बहुत प्रभावी कदम उठाए। लेकिन कितने ही उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए जब पाकिस्तानी नागरिक भी भारत में शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य कारणों से वीज़ा लेना आना चाहते थे, तो उन्होंने वो मानवता के आधार पर उनको वो सुविधा प्रदान की, उनकी चिकित्सा यहाँ करवाई और फिर उनको वापस भेजा। तो ये जो एक नया अध्याय उन्होंने कहा था कि जो हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं, उनमें जो कुछ भी विवाद हैं, जो कुछ भी समस्या हैं, वो हम अलग तरह से राजनीतिक पक्ष में डिप्लोमेसी के थ्रू करेंगे, लेकिन जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, हमारे एक मानवता का जो एक हमारे यहाँ पर एक संदेश हमने भारत ने हमेशा दिया है, उसके तहत अगर कोई भी अपनी चिकित्सा के लिए भारत आना चाहता है तो हम उसको वीज़ा मना नहीं करेंगे, बल्कि सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए। और आज जैसे पहले भी बात हो रही थी, वो एक छोटी सी बच्ची जो भटक कर पाकिस्तान में चली गई थी, उसको वापस लाने में और कितना उन्होंने प्रयास किया, और उसके बाद जब वो भारत आ गई तो उसकी पहचान ढूंढने में ऐसे लग रहा था कि सुषमा स्वराज ने इसको एक मिशन बना लिया है कि मैं इस बच्ची के माता पिता को ढूंढ के रहूँगी। तो वो बच्ची आज जब अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही थी आंसू बहाकर, तो वो दृश्य देखने वाला था। तो हम देखते हैं, चाहे अफ़गानिस्तान से लोग हों या किसी और पड़ोसी राज्य के
लोग भारत आकर अगर चिकित्सा के लिए एक सुविधा चाहते हैं तो उस पहलू पर भी सुषमा स्वराज ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और जिसके कारण उन्होंने लोगों के दिलों में और एक स्थान बनाया। तो NRIs और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और भारतीय जो पर्यटक उनकी सहायता करना तो भारत सरकार का वैसे भी दायित्व है, लेकिन उन लोगों के लिए भी उन्होंने मदद की कि जिन्होंने भारत से किसी तरह की सहायता मांगी। ये एक नया अध्याय उन्होंने भारत बिल्कुल, और ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे यमन में ऑपरेशन राहत चलाना हो या फिर नेहा पारिख जिन्होंने एक ट्वीट लिखा 2015 में कि उनके पेरेंट्स को टर्की से वापस लाया जाए, उसको तुरंत उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। जगन्नाथ सेल्वाराज जो 1000 किलोमीटर चले 2 सालों में ताकि वो लेबर कोर्ट तक पहुंच चुके क्योंकि उनको भारत वापस जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। दुबई से सुषमा स्वराज ने इंटरवीन किया और वापस वो पहुंचे और उनको भारत वापसी का मौका मिला। इसी तरीके से एक 14 साल की लड़की जिसको कि वीज़ा की समस्या हो रही थी, संगम विहार की एक छोटे से परिवार, गरीब परिवार की बेटी थी, जो अर्पिता तिवारी ने ये ट्वीट किया कि ईशा नाम की एक लड़की है जो संगम विहार से है, जो ब्रिटेन जाना चाहती है क्योंकि उसे कॉन्फ्रेंस में इन्विटेशन मिला है, वीज़ा नहीं मिल रहा था। छोटी छोटी सी समस्याएं जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन सुषमा स्वराज ने यहाँ उनकी भी सहायता की। इसके अलावा एक आदमी जिसके कुवैत में एक्सीडेंट हो गया था, उनको भी सहायता चाहिए थी, तो तुरंत सुषमा स्वराज ने उन्हें सहायता पहुंचाई। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में भारतीय कुछ छात्र थे जिनको सहायता चाहिए थी, उन्हें पहुंचाई सहायता। करणवीर बोहरा जो टीवी एक्टर है बहुत फेमस, उन्होंने जब बोला कि मैं मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फंस गया हूँ, उन्हें भी सहायता पहुंचाई। यानी हर आम व खास जिसने भी सहायता के लिए सहायता मांगी सुषमा स्वराज से, सुषमा जी ने उन्हें सहायता दी। ये कुछ गिने चुने उदाहरण हैं, लेकिन बहुत लंबी फहरिस्त है ऐसे उदाहरणों की जिन लोगों तक सुषमा जी ने सहायता का हाथ पहुंचाया। शक्ति सिन्हा जी, सुषमा जी जिस वक्त वो राजनीति में पदार्पण किया उस समय वो वकील भी थी, उच्चतम न्यायालय से उन्होंने वकालत अपनी शुरू भी की थी, लेकिन क्या कारण लगता है आपको कि उन्होंने, क्योंकि अगर वो वकालत करती, जिस तरीके की वक्ता वो थी, वो वकालत में एक बहुत सफल अपना करियर बना सकती थी, लेकिन वकालत नहीं, उन्होंने देश सेवा का रास्ता चुना, राजनीति का रास्ता चुना। दंपति दोनों वकील जी, बट हाँ, सुषमा जी ने मेरे ख्याल से उस समय, और आपको अगर याद होगा, जो देश गुजरा था 1975 से 77 दौरान, 2 साल के दौरान, जब आपातकाल था, हज़ारों नहीं लाखों लोगों को जेल में डाली गई थी, फंडामेंटल राइट्स हटाई गई थी, उसका प्रभाव उन पर बहुत पड़ा। और उसके प्रभाव से, और उसके पहले जो एंटी करप्शन मूवमेंट चला था जयप्रकाश जी का, संपूर्ण क्रांति का जो चला था आंदोलन, उससे उनके बहुत तेज प्रभाव पड़ा और बहुत अच्छे वकील बन सकती थी। अगर आप उनके कोई भाषण आप सुनिएगा, कोई भी भाषा में, हिंदी में हो, अंग्रेज़ी में हो या कन्नड़ में हो, तो मैंने सुना है, तो आपको लगता था हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छी तरह वकालत कर सकता है। बट उनके लिए जो कहते हैं अंग्रेज़ी में एक हायर कॉलिंग था, और वो हायर कॉलिंग देश था, और क्योंकि वो 3-4 साल जो गुजरा था उस पर उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उससे वो मेरे ख्याल से इस निर्णय पर आए कि अगर देश की सेवा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सफलता मिले ना मिले, यानी कि केवल अगर वो एक सफल वकील बन के रहे। Notice that chief ministers of the northeastern states have come, and that also is quite significant because, you know, as external affairs minister, the northeast has played an important role in India's outreach to ASEAN, to those countries. At least it is being seen, you know, as playing a future role as well. So I think this also is a significant testament to the contribution of Sushma Swaraj ji as External Affairs Minister. शक्ति सिन्हा जी, अगर हम सुषमा स्वराज जी के जीवन पर नज़र डालते हैं तो कहा यह भी जाता है कि वो चाह रही थी कि उनकी आत्मकथा भी लिखी जाती। अगर लिखी जाती तो आपके ख्याल से ऐसे कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जो उनकी आत्मकथा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होते? जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ा पड़ाव था ये निर्णय लेना कि मैं पब्लिक सर्विस में आऊँगी, मैं अच्छी वकील के बनने के बजाय पब्लिक सर्विस में आना। ये बहुत बड़ा निर्णय होता है तब लेना जब आप अच्छी स्टूडेंट रही हैं, आपका अच्छा वकालत शुरू हो रहा है। दूसरा, जबकि उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मेरे सिद्धांत के चलते
मेरी सरकार अगर गलत कर रही है तो मैं मंत्रालय को छोड़ दूँ। और फिर आप देखिएगा उनके पहले जीवन के पहले अलग अलग, जब भी देश की बात आगे बढ़ती है, जब जनता पार्टी टूटती है तो कहाँ जाए, क्या ऐसी विकल्प है जो देश की इंटरेस्ट को देखभाल करेगी। उन्होंने वो आगे बढ़ी, सोशलिस्ट बैकग्राउंड होने के बावजूद बीजेपी में आई, बाद में हरियाणा पॉलिटिक्स में फिर एक्टिव रही और फिर दिल्ली शिफ्ट करती हैं जी। तो मेरे ख्याल से, और जिस तरीके से वो पार्लियामेंट में आके अक्रॉस पार्टी लाइंस महिलाओं को मुद्दा उठा करके, महिलाओं का आरक्षण उठा करके जिस तरीके से वो आगे बढ़ती हैं, जिस तरह वो आगे बढ़ती हैं, जिस तरीके से वो अक्रॉस पार्टी लाइंस बाकी महिलाओं के साथ, और आप जिस देख रहे हैं अभी, वही बोलने में दिक्कत इसलिए हो रही है कि ये बड़ा हवा तक मौका है सामने, बट कई जगह कई मौके पर वो ऐसा कदम ली हैं सुषमा जी ने, जो कि पॉलिटिकल लाइफ में, उनके पॉलिटिकल लाइफ में नहीं, बट उनके साथ उनकी पार्टी और नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा असर पड़ा है। ये सीधे दृश्य अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं लोधी रोड के शमशान गृह से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का इस वक्त अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और एक बहुत बड़े सम्मान की बात है ये, ख़ास तौर पर उस शख्सियत के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए, देशवासियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अशोक जी, जब भी हम इस तरह के दृश्य देखते हैं जहाँ पर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए सब कुछ अपना सर्वस्व कुर्बान किया हो, पूरा जीवन कुर्बान किया हो, ऐसी शख्सियत के लिए इस तरह का सम्मान बहुत नसीब वालों को मिलता है। बिल्कुल, देखिए जो लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं समाज सेवा में, उनको समाज की ओर से भी उतना ही सम्मान मिलना भी चाहिए और मिलता भी है। आइए देखते हैं ये दृश्य। गन सैल्यूट है। जब हम राजकीय सम्मान की बात करते हैं तो एक पूरी प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है, और जो हम अभी आपको दिखा रहे थे लोधी रोड से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और इस वक्त हम देख सकते हैं आमो खास तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, ना केवल तमाम केंद्रीय नेता, ना केवल विभिन्न अन्य दलों के बड़े नेता, बल्कि हर वो व्यक्ति जो सुषमा स्वराज जी से कहीं ना कहीं जुड़ा है, वो आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का गवाह बनना चाहता है। सुषमा स्वराज जी जिनके पार्थिव शरीर जिनका इस वक्त लोधी रोड स्थित शमशान गृह में मौजूद है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ मौजूद हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह, सभी यहाँ मौजूद। उन्हें गन सैल्यूट दिया गया, राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। And the ceremony is at its conclusion. There was a gun salute that was presented. This is an electric crematorium, so we will not be seeing the flames that perhaps people were looking, were anticipating. And I think at the ceremony, the Prime Minister and Mr. Lal Krishna Advani, Rajnath Singh,
बहुत ही भावपूर्ण मौका सभी के लिए, क्योंकि जिनके साथ उन्होंने कई दशकों तक काम किया, जिनके साथ उन्होंने राजनीति का सबक सीखा, जिनके साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र के अहम पड़ाव पूरे किए, आज उन सब का साथ छोड़कर वो जा चुके हैं। आज हमारे बीच नहीं है सुषमा स्वराज, लेकिन जो कुछ उन्होंने देश के लिए किया, जो कुछ उन्होंने देशवासियों के लिए किया, जो अहम घटनाएं उनके जीवन की रही, वो सभी संदेश आज हम सब के सामने हैं। राजनीतिक सफ़र में उन्होंने जो राह तय की, उस राह के ज़रिए भी बहुत अहम संदेश वो हमारे लिए छोड़ कर जा रही हैं, अहम सबक हम सब के लिए, उनसे प्रेरणा लेने का मौका हम सब के लिए, न केवल उन लोगों के लिए जो राजनीतिक जीवन में हैं, बल्कि देश की महिलाओं के लिए भी कि आप जो करना चाहती हैं वो आप कर सकते हैं। और ये सीधे दृश्य जो हम आपको दिखा रहे थे लोधी रोड से शिवश्याम गृह से, जहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार पूर्ण किया गया है। राज के सम्मान के साथ, बंदूकों की सलामी के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक बहुत बड़ा सम्मान जो सुषमा स्वराज को मिला, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा पर समर्पित कर दिया। And also in attendance were Vice President of India, Prime Minister of India, senior cabinet colleagues of the Prime Minister and former colleagues of Sushma Swaraj ji, fellow members of her political party, well-wishers, and it was poignant because she took them along in a sense throughout her political career. They had been with her, they had shared moments, and they had shared in her journey, she had shared in their journey, as we were talking in the studio also, where the party moved from 2 seats to rule the country. So it was a long journey, and there were times, 16 years, when the party did not have much to look forward to in parliament or in electoral victories, but then from the mid-90s onwards has established itself as the foremost party in India. अशोक जी, एक महत्वपूर्ण बात जो कही गई वो ये कि सुषमा स्वराज जी के राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव ऐसा था जब वो सत्ता में नहीं थी, सरकार नहीं थी सत्ता में, और उस वक्त का एक आपने शब्द इस्तेमाल किया तपस्या का या संघर्ष का वो जीवन था, वो काल था। क्या हम ये माने कि जो आज के दौर में हम राजनीति देख रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष की राजनीति, जिसमें कहीं ना कहीं वैमनस्य की भावना सामने आ रही है, जहां पर एक जो सौहार्द होना चाहिए या जो एक सकारात्मक सोच और चर्चा होनी चाहिए, एक सकारात्मक संबंध होने चाहिए, राजनीतिक संबंध होने चाहिए, कम से कम संसद के भीतर और बाहर आम जनता के सामने देखें तो वो नज़र नहीं आ रहे। आपको लगता है कि जिस समय हम बात करते हैं कि 2009 से 2014 तक नेता विपक्ष रही सुषमा स्वराज, उस समय का जो उदाहरण उन्होंने पेश किया था, आज कहीं ना कहीं उसी उदाहरण को अपनाने की भी ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए, संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और संसदीय लोकतंत्र एक तरह से पूरा ही नहीं होता अगर वहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं हो। तो भारतीय लोकतंत्र में भी, संसदीय लोकतंत्र में हमने देखा कि हमारे यहाँ भी विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और वो भूमिका आज भी बनती है। और ऐसा भी हमने एक दौर देखा सन 52 से लेकर, और अगर हम कहें 1977 तक, तो एक छत्र, एक ही दल का जो बहुमत रहा संसद में, एक ही दल की सरकार रही, और उसमें विपक्ष लगभग कमज़ोर रहा, लेकिन लोकतंत्र, भारत का संसदीय लोकतंत्र उस समय भी मजबूत था। हम जानते हैं कि भारत की संसद में कम संख्या में होते हुए भी इतने महान सांसद विपक्ष ने पैदा किए थे कि जिनके खड़े होकर बोलने से भी एक बार तो सत्ता पक्ष हिल जाया करता था। ऐसे अनेक सांसद जिनका हम नाम लेकर बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रोकते हुए दर्शकों को एक बार ये जरूर बता दें कि ये दृश्य कुछ दिन पहले के हम आपको दिखा रहे थे, जब सुषमा स्वराज जी के पार्थिव शरीर को भाजपा के
झंडे में लपेटा गया था, उसके बाद तिरंगे में। हाँ। जी जी बिल्कुल, भाजपा कार्यालय के दृश्य थे वो। लेकिन इस वक्त ये दृश्य आप देख रहे हैं लोधी रोड के शमशान गृह से, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार संपन्न हो गया है। जिसके बाद हम कुछ देर पहले आपको दृश्य दिखा रहे थे कि उनके पति स्वराज कौल और उनकी बेटी इस वक्त वहाँ स्वराज कौशल और उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद थी और सब उनसे आज्ञा लेकर प्रस्थान कर रहे हैं। इस वक्त एक ऐसा मौका जिसको शब्दों में बयां करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन को उन्होंने अलग अलग ढंग से छुआ और उनके जाने की क्षति हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर ज़रूर महसूस कर रहा है। अशोक जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से नेता विपक्ष में उन्होंने अपना योगदान दिया बतौर नेता विपक्ष। हाँ, क्योंकि देखिए संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर हम बात कर रहे थे और मैं ये बता रहा था कि सन 52 से लेकर लगातार 1977 तक देश में विपक्ष संख्या बल में कमज़ोर था लेकिन प्रभावी था। ऐसे ऐसे प्रभावी सांसद विपक्ष ने पैदा किए थे कि जिनके केवल संसद में खड़े होकर बोलने से भी एक बार सत्ता पक्ष को उनकी बात सुननी पड़ती थी। और उस कड़ी में हम अगर बात करें शुरू से तो राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, एस.एम. बैनर्जी, एन.सी. चटर्जी एक और भूपेश गुप्ता, बहुत ऐसी कड़ी है जो अलग अलग, जे.पी. कृपलानी, इतने बड़े नाम हैं जो संख्या बल में काम होते हुए भी उनके योगदान से भारत का संसदीय लोकतंत्र मजबूत हुआ था। और